میں آپ کو بتائیں کہ گلشن معمار جنجال گوٹ میں مکان کی چھت گر گئی ہے۔ 6 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ امدادی ٹیم جائے وقوع پر کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گلشن معمار جنجال گوٹ میں مکان کی چھت گر گئی ہے۔ 6 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ امدادی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل گلشن معمار کا علاقہ ہے، جنجال گوٹ افغان بستی، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل ایک مکان کی چھت گری اور ملبے تلے جو ہے وہ تقریباً 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جس میں خواتین بچے بھی شامل ہیں، اور 6 سے 7 افراد جو ہے وہ اس واقعے کے اندر زخمی ہوئے۔ تمام میتوں کو اور جو زخمی افراد ہیں ان کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وہاں پر امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ساتھ ہی جائے وقوع کے اوپر ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں، اور گلشن معمار پولیس کی نفری بھی موقع کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ تمام تر تحقیقات جو ہے وہ ان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چھت کیسے گری، چھت کے اوپر کوئی کام ہو رہا تھا یا چھت کمزور تھی، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تاہم اس وقت جو ہے وہ جو علاقہ مکین ہے وہ تھوڑے مشتعل دکھائی دیتے ہیں، اور پولیس کو بھی کارروائی کرنے میں جو ہے وہ تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ میتوں کو لے کر عباسی شہید اسپتال منتقل جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ جی، آپ کو بتائیں کہ سحری اور افطاری میں گیس کی بندش پر میئر کراچی برہم ہو گئے۔ کراچی والے گیس مانگ رہے ہیں، وزیر اعظم وعدہ پورا کریں۔ میئر کراچی نے وفاق کو پھر یاد دہانی کرا دی۔ ایم کیو ایم سے تعاون مانگ لیا، مل کر وفاق سے K4 اور دیگر منصوبوں کے لیے بجٹ مانگنے پر زور۔ کہا کراچی سے 10 ٹن کچرا روزانہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت سے تھیلیوں پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ۔ اہم شاہراہوں پر بیٹھے گداگروں کو بھگانے کا وعدہ۔ ماڑی پور میں فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سحری اور افطاری میں گیس کی بندش پر میئر کراچی برہم، وزیر اعظم سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میئر کراچی نے مدنی کالونی UC3 ماڑی پور ٹاؤن میں فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس لوڈ شیڈنگ پر برہم ہو گئے۔ بولے وزیر اعظم عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں، مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی ہمارا ساتھ دیں، آئیں ساتھ مل کر وفاق سے K4 اور دیگر کاموں کا بجٹ مانگیں۔ میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کیا ہے، وزیر اعظم پاکستان پلیز یا وعدہ کریں نہیں، اور اگر وعدہ کرتے ہیں تو وفا کریں۔ مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر ہیں، آپ کراچی والوں سے آپ نے ووٹ لیے ہیں تو کراچی والوں کا حق ادا کریں، اور کراچی والے کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگ رہے کہ ہمیں چاند پہ لے جاؤ۔ سحر کے ٹائم پر اور افطار کے ٹائم پر، جب سحری بنتی ہے افطار بنتا ہے، اس ٹائم کے اوپر لوڈ شیڈنگ نہ کریں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ دنیا کا بہترین وزیر اعظم وزیر یا میئر کام کرنے سے بنتا ہے۔ سابق ناظم کراچی کو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پکارتے ہوئے کہا کہ صحت کے مسائل حل کریں، مجھے پیپلز پارٹی کا نہیں کراچی کا میئر سمجھیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ ہمیں مستحکم کریں نا، مضبوط کریں۔ آئیے ساتھ بیٹھ کر کراچی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آئیے ساتھ بیٹھ کر وفاقی حکومت کو کہتے ہیں وہ جو 170 ارب روپے K4 کے لیے درکار ہیں، وہ ابھی بجٹ بننے والا ہے نا، اس کے اندر پیسوں کو مختص کریں۔ میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ KMC کی تنصیبات سے چوری کے خاتمے کے لیے پولیس اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام 2 مہینے میں 19 شہری قتل۔ ڈاکوؤں نے 40 سے زائد افراد کو گولیاں مار کر زخمی بھی کیا۔ 2800 شہری موبائل فون سے محروم۔ اسلحے کے زور پر 50 سے زائد گاڑیاں چھینی گئی، جبکہ چور 6100 سے زائد موٹر سائیکلیں لے اڑے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی میں ڈاکو بے لگام ہو گئے ہیں۔ 2 مہینے میں 19 شہری قتل۔ ڈاکوؤں نے 40 سے زائد افراد کو گولیاں مار کر زخمی بھی کیا۔ 2800 شہری موبائل فون سے محروم۔ اسلحے کے زور پر 50 سے زائد گاڑیاں چھینی گئی، جبکہ چور 6100 سے زائد موٹر سائیکلیں لے اڑے۔ ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر چلتے ڈمپرز حادثات کی وجہ قرار۔ 2 ماہ میں 167 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ حادثات سے پریشان شہریوں نے ٹینکرز نظر آتش کیے، پولیس نے بھی ٹرالر تحویل میں لے لیا۔ اپڈیٹ کریں، ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر چلتے ڈمپرز حادثات کی وجہ قرار۔
नीलम कॉलोनी में शादी के घर में मातम दीवार गिरने से 18 साल लड़की जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया का चंद घंटों के बाद निकाह था। बोर्ड बेसन पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। नीलम कॉलोनी में दीवार गिरने का वाक़या, खुशी का घर मातम कदे में बदल गया। 18 साल अलमास जान से चली गई। अलमास का चंद घंटों बाद निकाह था। 45 साल माँ और बेटी अलमास छत पर मौजूद थीं। दीवार गिरने के बाइस दोनों जख्मी हुई। अलमास जख्मों की ताब न ला सकी और जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गई। वो इधर आए थे वो कपड़े उतारने के लिए ना, तो ऊपर से उधर से वो बल्ले उठा रहे थे, सामान उठा रहे के पता नहीं जानबूझ के गिराई, ये पता नहीं पूरी उनके ऊपर आई, वो फिर नीचे जा गिरी। हमारे पास 15 से इतला ही थी, तो जब यहाँ पहुँचे तो एक लेडीज़ एक्सपायर हो चुकी थी और एक खातून ज़ख्मी थी। कह रहे हैं छत गिरने से इस तरह वाक़या हुआ है। फिर हम जिना लेके गए, तो जिना के अंदर फिर पहुँचे तो बच्ची एक्सपायर हो चुकी थी। वालदा के पैर पे और मारने जगहों पे ज़ख्मी थी। अलमास के मामू ने बताया कि छत पर कपड़े सूख रहे थे। दोनों माँ बेटी वो लेने गई थीं। बोर्ड बेसन पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। हुकूमत सिंध का बड़ा इकदाम। BRT रेड लाइन मनसूबे के मजीद 74 मुतासरीन को इमदादी चेक दे दिए गए। CEO ट्रांस कराची तारिक मंजूर कहते हैं 2026 तक रेड लाइन मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। तफसीलात अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। BRT रेड लाइन मनसूबे के मुतासरीन में चेक तकसीम। 74 शहरियों को 27,000 रुपए से 2,80,000 रुपए तक फराहम कर दिए गए। ट्रांस कराची की जानिब से माजी में 112 मुतासरीन में चेक दिए जा चुके हैं, जबकि मुतासरीन की कुल तादाद 868 है। CEO ट्रांस कराची तारिक मंजूर चांडियों का कहना है मंसूबे को 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की तामीर में यूटिलिटीज सबसे बड़ा चैलेंज है। अब तक 60% यूटिलिटीज ही मुंतकिल हो पाई हैं। उम्मीद है कि यूटिलिटीज़ हमारी 3-4 महीनों में सारी हो जाएंगी, तो बाकी जो ताकि इनको जो काम करने वालों को ना हो। सवाए एक हमारे साथ इशू है कि एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है K4, आपने सुना होगा, और वो भी काफ़ी अर्से से चल रहा है। उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं, तो जब तक वो, क्योंकि पाइप ने हमने ऊपर काम करना है, उन्होंने नीचे काम करना है पाइपों का। उनकी पाइप्स भी बड़ी हैं 92 इंच की, तो एक सिर्फ हमारा सेक्शन है कोई 3 किलोमीटर के करीब है, जिसमें बिल्कुल हमें ओवरलैप हो रहे हैं। CEO ट्रांस कराची का कहना है कि ग्रीन लाइन बसों के किरायों में बढ़ाने की कोई पॉलिसी नहीं है। कैमरामैन राहिल के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि चीनी की कीमत आसमान को छूने लगी। एक हफ्ते में चीनी 6 रुपये महंगी होकर 163 रुपये किलो पर पहुंच गई। शहरी चीनी की बढ़ती कीमत से परेशान हो गए। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की करवाहट चीनी की मिठास से शहरियों को दूर करने लगी। चीनी की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी। होलसेल में चीनी एक हफ्ते में 6 रुपए महंगी होकर 163 रुपए पर जा पहुंची। रिटेल में 170 रुपए किलो पर बरकरार। चीनी की नई कीमत को सुनकर शहरी परेशान। कहा कि हुकूमत चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया को सस्ता करे। महंगाई जो है इस सतह पर पहुँच चुकी है, जो गरीब जो है उसके लिए दुश्वारियाँ हो रही हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि जो खाने पीने की अशिया है उसको कम रेट पर कर दें। ये महंगी हो चुकी है, काफ़ी हद से महंगी हुई है। पिछले साल इतनी महंगी नहीं है जितनी अब महंगी हो गई है। समझे, ये हुकूमत को चाहिए ना इसको देखना क्या है क्या नहीं है। बाद में कहते हैं कि हमने वहाँ से चीनी बरामद की, वहाँ से बरामद की, पर सस्ता कोई नहीं खाता। दुकानदारों ने चीनी महंगी होने की वजह गन्ने की पैदावार में कमी और मुतासर होने को करार दे दिया। इस साल जो गन्ने का सुन रहे हैं कि खराब हुआ है और मिल ऑनर को गन्ना 550-600 रुपये मन खरीदना पड़ा है, जिसकी वजह से ये महंगाई हुई है। चीनी की जो है वो पैदावार कम हुई, लेकिन इतनी तेजी ये बात समझ में नहीं आती। पहले जो शुरू हुआ था उसमें ये थी 120 रुपये के आसपास, अब जो है ये हो गई है 163, यानी पर किलो बढ़ गया तकरीबन 40 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा है ये। होलसेल में चीनी की बढ़ती कीमत से रिटेल में चीनी 170 रुपये से बढ़ने का इम्कान है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नेपरा ने कराची वालों को बिजली की मद में मुकम्मल कमी के रिलीफ से महरूम कर दिया। अंजुमन ताजरान कराची ने बिजली फी यूनिट 5 रुपये सस्ती न होने पर मायूसी का इजहार कर दिया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए।
ताजिर बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती न होने पर मायूस। के इलेक्ट्रिक की 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली 3 रुपए सस्ती कर दी। दिसंबर की एडजस्टमेंट कीमत में नेपरा की जानिब से रिलीफ पर अंजुमन ताजरान कराची का मायूसी का इजहार। एसोसिएशन के सदर जावेद शम्स और लखताबाद के दुकानदारों को कहना है कि कराची के शहरियों को बिजली सस्ती करके रमजान में रिलीफ दिया जा सकता था। बिजली के बिलों की अदायगी मौजूदा दौर में पहले ही मुश्किल हो चुकी। नेपरा अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए बिजली को 5 रुपए सस्ता करे। के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी कराची के आवाम और बिलखुसूस ताजिरों पर कमर्शियल बिलों पे लातादाद टैक्सेस लगा के उनके बिलों को जो है बढ़ा रही होती है। अल्लाह अल्लाह करके एक नवीन हमें मिली थी कि 5 रुपए फी यूनिट का जो है वो हमें कमी जो है वो सुनाई दी थी और नए साल की एक खुशखबरी थी, लेकिन लाखों सार्फिन जो है वो मुतासिर हुए हैं और ये एक उम्मीद थी लोगों को कि इससे कम से कम रमज़ान की भी आमद थी और ये रिलीफ उनके रमज़ान की अखराजात में कमी के अंदर जो है वो काम आएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है के लिए 5 रुपये कहा था तो उसको भी जो है उन्होंने अब 3 रुपये की बात कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। पहले ही कराची का एक नेपरा अलग जुल्म किया ही जा रहा है, अब उस 5 रुपये में से भी जो है ना उसको ये 3 रुपये में कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। वैसे कराची जो है आपको सामने चक्की में पिस रहा है, इतने पैसे ओवर बिलिंग भर ही रहा है, भरते भरते थक गया है। ताजरों का कहना है कि नेपरा ने कराची वालों को माहाना एडजस्टमेंट में मुसलसल दूसरे माह रिलीफ से महरूम किया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माह सियाम में भी शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A के मकीनों को माह सयाम में शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली और गैस के बाद पानी की अदम दस्तयाबी ने भी रोजेदारों को परेशान कर दिया। इलाके में कई रोज से नलके सूखे पड़े हैं और बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से रोजेदार सख्त अजियत में मुब्तला है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि पानी की किल्लत से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खवातीन को सहर अफ्तार के वक्त मुश्किलात का सामना है, जबकि बच्चे और बुजुर्ग भी शदीद परेशान हैं। ये पानी की जो किल्लत चल रही है ये तकरीबन 3 महीने से चल रही है मुसलसल, यानी कि 3-4 दिन आता है तो फिर 5-6 दिन नहीं आता, एक हफ्ते नहीं आता। 2 दिन आ रहा है पानी, 10 दिन 1 महीने बंद है पानी। ये तो नहीं होना चाहिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके। हम तो बड़े, हम ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे हैं जिनको पूरे दिन फेस करना होता है, हमारी घर की वाइफ वगैरह जो होती है, अब उसकी वजह से उनको सब मसले मसाइल ये हो रहे हैं कि वो बेचारे पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं। रिहायशियों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर बिजली और पानी की बंदिश का नोटिस लें ताकि माह रमजान में शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ भूख हड़ताल कैंप लगा दिया। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने शिरकत की। कहा, इन नहरों के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश होनी चाहिए। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। सिंध के मसाइल पर खामोशी क्यों? आफाक अहमद ने सिंध असम्बली से करारदाद की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद सिटी कोर्ट पहुंचे और सिंध लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के भूख हड़ताली कैंप में शिरकत की। वुकला ने आफाक अहमद को फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में आफाक अहमद ने कहा कि सिंध के अवाम की आवाज दबाई जा रही है। नहरों के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश होनी चाहिए। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सिंध के पानी के मसले पर सिंध की आवाम की आवाज़ को सुना नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब को ये वजाहत करनी चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि सिंध के मफाद में है तो सिंध के लोगों को एतमाद में लीजिए, और अगर वो किसी दबाव के अंदर उन्होंने फैसला किया है तो भी सिंध के अवाम को एतमाद में लीजिए। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट का कहना था कि सिंध के मसाइल पर शहरी और देही बाशिंदे मुत्तहिद हैं। सिंध के शहरी अवाम हो या देही अवाम हो, मैंने जिस तरह कहा कि हमें अब एक कदम आगे बढ़कर देही और शहरी अवाम के मसले को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। हमें अब एक कदम आगे बढ़ाकर हर मसले को जो देही है उसको भी शहरी अवाम को अपना मसला समझना चाहिए, और अगर कोई शहरी अवाम का मसला है तो मैं इस देही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इन वुकला बिरादरी से भी कहूँगा कि उन्हें भी सिंध के शहरी अवाम के मसाइल को अपना मसला समझना चाहिए। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में सुरजानी टाउन में वाटर टैंक का नजर आतिश करने के केस की समाअत हुई। आफाक अहमद अदालत में पेश न हुए। अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन राना झांझब के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची में बच्चों के वालिदैन होशियार मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल आंखों की बीमारियों में मुब्तला करने लगा। बहंगापन, आंखें खुश्क होना और ख़ारिश की अलामात सामने आने लगी। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए।
बच्चों का मोबाइल का इस्तेमाल महदूद करना नागजीर। बच्चे आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे। भींगापन, आंखें खुश्क होना और खारिश होना अलामात। बच्चों के मोबाइल का मुसलसल इस्तेमाल खतरनाक करार। बच्चे 60 साल की उम्र में लगने वाले इमराज चश्म का शिकार। आंखों के डॉक्टर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 150 से 200 मरीज रिपोर्ट। माहिर इमराज चश्म डॉक्टर मसूद ने बताया कि ओपीडी में आने वाले 80% बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 50% बच्चों को चश्मों की जरूरत पड़ सकती है। इस टाइम जो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनको जो अगर चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है तो तकरीबन 70 से 80% बच्चे वो हैं जिनका मोबाइल का इस्तेमाल है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, उसमें आंखों में खुश्कपन भी पैदा हो रहा है, जो अक्सर हमारे ओल्ड एज पेशेंट में होता था, जो तकरीबन 60-70 साल के जो बुजुर्ग होते थे, उनमें जो ड्राई आई की डिजीज़ होती थी वो मोबाइल के इस्तेमाल से हमारे बच्चों में शुरू हो गई है। वालिदैन भी बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बरहम। बोले घर के काम करने हो तो बच्चों को मोबाइल फोन देना पड़ता है। बाज ना आए तो जवानी में भी बीनाई मुतासिर हो सकती है। घर में नानी के घर जाते हैं, वहाँ से खाला से ले लिया, बड़ी खाला से, मामू से, आधे घंटे चलाते हैं, 1 घंटा। स्कूल का होमवर्क वगैरह करने बोलो, मम्मा थोड़ी देर और, इस तरह होता है। बस ये कहती हैं जलन हो रही है आंखों में और पानी आ रहा है और जो पलक झपका रही है, 1 हफ्ते से पलक झपक रही है इनकी। स्कूल में भी शिकायत आई है, पलक झपका रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, अभी क्यों हो रहा है? 1 हफ्ते से हो गया है। तिबी माहिरीन ने बच्चों को बार बार मोबाइल इस्तेमाल न करने की अपील कर दी। आंखों के साथ जहन पर भी गहरे असरात से खबरदार कर दिया। कैमरामैन शाहजेब के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। माह सियाम में दीगर सरकारी इदारों की तरह पासपोर्ट दफातर में भी औकात कार तब्दील कर दिए गए। अवामी मरकजी दफ्तर में शिफ्ट इंचार्ज गुलाम मुश्तबा सुमरो कहते हैं 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। अवाम की सहूलत के लिए अहम इकदाम। माह सियाम में पासपोर्ट दफातर में भी औकात कार तब्दील। अवामी मरकज पासपोर्ट ऑफिस में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद होती है। पासपोर्ट ऑफिस में 3 शिफ्टों में काम होता है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक, दूसरी शिफ्ट 12:30 से शाम 5 बजे तक, तीसरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मौजूद होती है। शिफ्ट इंचार्ज गुलाम मुश्तबा सुमरो की शहरियों को एजेंट माफिया से बचने की अपील। कहा, शहरी किसी दुश्वारी की सूरत में हमारे पास आएं। एजेंट माफिया है, किसी भी बंदे को एजेंट माफिया से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ीस तमाम ऑनलाइन मौजूद है। एक ऑनलाइन ऐप पे पासपोर्ट फ़ीस आसान, उसको डाउनलोड करें और अपनी बैंक से डायरेक्ट फ़ीस जमा करा के और वो वोचर चालान हमारे पास लेकर आएँ और इधर से आके अपना पासपोर्ट जमा करा दें। पासपोर्ट अपने राइट टाइम पे आ रहे हैं। जो फास्ट ट्रैक है वो 2 से 3 दिन में आ रहा है और जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो 5-6 दिन में आ जाता है और जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो भी 21 डेज़ में डिलीवर हो जाता है। पासपोर्ट के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों ने पासपोर्ट अमले की खिदमात को सराहा और अवामी सहूलियात को खुशाइन करार दिया। यहाँ का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है और जैसे हम आए हमें तो बच्चों के साथ थे लेकिन कोई दुश्वारी नहीं हमें हुई। हुकाम ने मुकर्रर वक्त में पासपोर्ट जारी करने का दावा कर दिया है। कहा, बआसानी शहरी अपना पासपोर्ट बनवा और ले सकते हैं। कैमरामैन हारिस के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।